Good morning children, welcome to your biology class. Dear students, you have to watch all the videos of all the subject for better understanding of the topic. These topics will not be repeated when you come to school. We don't have that much time, so you have to study from these recorded videos. It is very important for you to study from these videos. You must watch reproduction introduction videos, then only you are able to understand type of reproduction. Okay. First, you have to understand the basis of reproduction. What is reproduction? Why reproduction is taking place? Then only you are able to understand how do organisms reproduce. You must know why DNA copy take place during reproduction, what is variation, what is the importance of variation. Then only you are able to understand type of reproduction. So, in today's class we will discuss about different modes of reproduction. So, organisms reproduce either asexually or by sexual method. So, asexual reproduction, one single parent is required. In asexual reproduction, gametes are not involved, egg and sperm is not involved. While in sexual reproduction, two individuals, two parents are involved, and sexual reproduction takes place with the help of gamete cells, that is egg and sperm. In asexual reproduction, chances of variations are very less because one single parent is involved. So, the DNA of that single parent will be passed on to the daughter cell, while in sexual reproduction two parents are involved. So, the DNA of two parents is combined. So, chances of variation are more in sexual reproduction. Asexual reproduction is the common mode of reproduction in unicellular organisms, single cell organisms or the organisms with simple body design. They reproduce through asexual reproduction, while sexual reproduction takes place in multicellular organisms, the organisms which have complex body design. So, in today's class we are going to study asexual reproduction in detail. So, asexual reproduction is of different types. Organisms reproduce through fission, budding, regeneration, fragmentation, spore formation or vegetative propagation. So, we will discuss them one by one. What is fission? The word fission means to split. So, fission is a method of asexual reproduction by which a single parent divides into two or more daughter cells. फिजन का मतलब क्या है? स्प्लिट होना. तो फिजन वो एसेक्सुअल मेथड है जिसमें एक सिंगल पेरेंट दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. Now fission is of two type, binary and multiple. The word binary represent two. So this is the method of asexual reproduction in which a single parent splits into two daughter cell. देखिए बाइनरी का मतलब है टू. सो बाइनरी फिजन में एक सिंगल सेल कितने डॉटर सेल्स में ब्रेक होगा बेटा? दो डॉटर सेल्स में ब्रेक होगा, जैसे यहाँ अमीबा का दिखा रखा है. ओके ये सिंगल सेल अमीबा है. सो ये दो डॉटर सेल्स में लास्ट में 6 नंबर पे देखो दो डॉटर सेल्स में यहाँ नीचे ब्रेक हो जाएगा. सो सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस विल डिवाइड. Karyokinesis. The word karyo represent nucleus, kinesis represent division. So first karyokinesis takes place, nucleus will divide and after the nucleus division cytoplasm will divide. तो आपको यहाँ थर्ड फिगर में दिखाई दे रहा है बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लियाई बन चुकी हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई आ गई और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रही है. यहाँ पे देखिए फोर्थ में आप साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो चुकी है एंड फिफ्थ में देखिए सेल इज़ अबाउट टू स्प्लिट. यहाँ से सेल जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट होने वाला है. और सिक्स्थ स्टेज में तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक सिंगल सेल से दो डॉटर सेल्स अमीबा आ गए. सो सेल डिवीजन के टाइम पे सबसे पहले किसकी डिवीजन होगी? न्यूक्लियस की. एंड न्यूक्लियस डिवीजन इज कैरियोकाइनेसिस. Karyokinesis is followed by cytokinesis. Cyto means cytoplasm. So cytokinesis is division of cytoplasm. So binary fission takes place in amoeba, paramecium, euglena, leishmania. In binary fission, a single parent splits into two daughter cells.
बाइनरी फिजन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन कौन सी कंडीशन में होगा? फेवरेबल कंडीशन में होगा। ओके और बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड हो रहा है? न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे एक बार न्यूक्लियस डिवाइड होके न्यूक्लियस ने कितने न्यूक्लियाई बना लिए? 2 न्यूक्लियाई बन चुकी हैं और ये न्यूक्लियाई दोनों अपोजिट एंड की तरफ मूव करेंगी। सो इन बाइनरी फिजन सिंगल पेरेंट splits into 2 daughter cells. Binary fission takes place in favorable condition. In binary fission nucleus divide once. nucleus एक ही बार divide होता है. If we talk about multiple fission, multiple, this word represent many. So in multiple fission a single cell splits into many daughter cells. M for multiple, M for many. M for multiple, M for many. So in multiple fission a single cell splits into many daughter cell. The same process will take place. Multiple fission takes place in unfavorable condition. Multiple fission कौन सी condition में होगा? Unfavorable में. Unfavorable conditions कौन सी होती हैं? Which are not according to the organism. Harsh condition जो होती है. So binary fission favorable में हो रहा था. Multiple fission takes place in unfavorable. Binary fission में एक सेल split होके 2 daughter cell बना रहा था. In multiple fission a single parent cell splits into many daughter cells. Okay. Binary fission में nucleus एक ही बार divide हुआ था, while in multiple fission nucleus divide many times. So multiple fission takes place in plasmodium. Plasmodium is malarial parasite जिसकी वजह से हमें क्या होता है? मलेरिया. फीमेल एनोफिलस जब आपको बाइट करती है तो अगर उसने इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से ब्लड को सक किया है तो वहाँ से प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है. और जब फीमेल एनोफिलस किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद, तो उसकी बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाता है. प्लाज्मोडियम इज़ अ प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम से कौन सी डिजीज़ होती है? मलेरिया. ओके सो मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस इन unfavorable condition. A single cell splits into many daughter cell and nucleus divide many times. तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो यहाँ पे इस प्लाज्मोडियम के आसपास एक हार्ड कवरिंग डेवलप हो जाती है एंड वी कॉल इट एज सिस्ट वॉल. इस वॉल को हम सिस्ट वॉल कहते हैं एंड दिस स्टेज इज नोन एज एनसिस्टमेंट स्टेज. सो इन दिस स्टेज न्यूक्लियस डिवाइड मेनी टाइम्स एंड फॉर्म मेनी डॉटर न्यूक्लियाई. एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आएंगी, सिस्ट वॉल विल ब्रेक एंड many daughter plasmodium cells are released out. जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आई तो प्लाज्मोडियम ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास एक हार्ड कवरिंग, टफ कवरिंग डेवलप कर ली और उसको हम सिस्ट वॉल कहते हैं. और उसमें न्यूक्लियस ने बहुत ज़्यादा डिवाइड किया. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस था और यहाँ पे देखिए कितने सारे डॉटर न्यूक्लियाई आ गए, है ना. तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? जब सिस्ट वॉल डेवलप होती है, अनसिस्टमेंट स्टेज. ओके और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, सिस्ट वॉल विल ब्रेक एंड रिलीज दीज डॉटर प्लाज्मोडियम सेल्स. नेक्स्ट इज रीजनरेशन. रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन वो मेथड है जिसमें ऑर्गेनिज्म के कट बॉडी पार्ट में से या तो पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है या कोई भी ऑर्गन डेवलप हो जाता है. Okay, so in regeneration, if the body of an organism is cut into parts or pieces, from each broken part a new individual can be grown. So regeneration takes place in Hydra, Planaria, starfish. Planaria have high regeneration power. तो ये Planaria का example है. Planaria belong to Platyhelminthes, flatworm. So Planaria है यहाँ पे ये. प्लेनेरिया के आप जितने बॉडी पार्ट्स में कट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, 2, 3 पार्ट्स में कट किया है, फ्रॉम दीज 3 पार्ट्स न्यू इंडिविजुअल और न्यू प्लेनेरिया विल बी डेवलप. हर एक पार्ट से एक प्लेनेरिया, इस पार्ट से एक प्लेनेरिया डेवलप हो गया, इस मिडिल पार्ट से और इस लोअर पार्ट से एक. तो ये रीजनरेशन है. रीजनरेशन में क्या होता है? बॉडी के किसी भी कट पार्ट से या तो पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है या कोई ऑर्गन डेवलप हो जाता है. जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट लिजार्ड, तो लिजार्ड की जो टेल है उसके अंदर रीजनरेशन पावर है. अगर उसकी टेल कट हो गई तो वो रीजनरेट हो जाएगी, लेकिन उसकी बॉडी में और अगर कोई पार्ट है वो कट हो गया तो रीजनरेट नहीं होगा. आपकी फिंगर कभी कट हो गई तो वो रीजनरेट नहीं होगी, लेकिन आपके लीवर के पास रीजनरेशन पावर है.
रीजनरेशन, हाइड्रा कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू रीजनरेशन। तो यहाँ पे देखिए आप हाइड्रा को कट कर दिया 2 पार्ट्स में एंड फ्रॉम ईच पार्ट अ न्यू हाइड्रा विल डेवलप। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रा है वो डेवलप हो रहा है। सो रीजनरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। कि स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके दे फॉर्म टिश्यू और टिश्यू से जो सिंपल ऑर्गन्स है वो भी डेवलप हो जाते हैं। सो रीजनरेशन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड स्टारफिश। और रीजनरेशन में पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी डेवलप हो सकती है और बॉडी का कोई ऑर्गन, अगर किसी ऑर्गन में रीजनरेशन पावर है, रीजनरेटिव सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो ऑर्गन भी डेवलप हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन, नाउ यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन, try to understand difference between regeneration and fragmentation. Fragmentation takes place in simple multicellular organisms. Fragmentation किस में होता है? Simple multicellular organism में. For example, Spirogyra. Spirogyra is an algae. Spirogyra क्या है? Algae है बेटा। और जैसे ये Spirogyra mature हो जाती है, maturity gain कर लेती है, the Spirogyra splits into फ्रेगमेंट्स, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में पीसेस में ब्रेक हो जाती है एंड फ्रॉम द ईच फ्रेगमेंट अ न्यू स्पाइरोगायरा इज डेवलप। तो यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंटेशन कब हो रहा था? ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में छोटे स्मॉल पीसेस में कब ब्रेक हो रहा था? मैच्योर होने पे। लेकिन रीजनरेशन का यहाँ मैच्योरिटी से लेना देना नहीं है। रीजनरेशन तो कहाँ पे होगा? जहाँ पे रीजनरेटिव सेल्स होंगे। और रीजनरेशन किस में हो रहा है? रीजनरेशन भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, बट कंपेयर टू फ्रेगमेंटेशन दीज ऑर्गेनिजम्स हैव स्लाइटली कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। जैसे इफ यू कंपेयर स्पाइरोगायरा विद हाइड्रा, प्लेनेरिया और स्टारफिश, तो कौन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं भाई? हाइड्रा, प्लेनेरिया और स्टारफिश आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दी स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा तो एल्गी है, ओके बल्कि आपका हाइड्रा एनिमल है, प्लेनेरिया एनिमल है, स्टारफिश भी एनिमल है। हाइड्रा बिलोंग्स टू सिलेंट्रेटा, प्लेनेरिया आपका फ्लैटी हेलमिंथिस है और स्टारफिश बिलोंग्स टू अकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो रीजनरेशन किस में हुआ? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन देन स्पाइरोगायरा। और स्पाइरोगायरा किस में हो रहा है? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन कब हो रहा है? जब स्पाइरोगायरा मैच्योर हो जाती है, इट ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट और पीस अ न्यू स्पाइरोगायरा इज डेवलप्ड। स्पोर फॉर्मेशन, दिस टेक्स प्लेस इन फंजाई। स्पोर फॉर्मेशन, फंजाई से कौन रिप्रोड्यूस करता है? फंजाई से रिप्रोड्यूस करते हैं फंजाई। तो यहाँ पे देखिए स्पोर फॉर्मेशन से कौन रिप्रोड्यूस करता है बेटा? स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं आपकी फंगस, फंजाई। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो टिप के ऊपर प्रेजेंट है, इट इज़ नोन एज स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? टाइनी पार्टिकल्स नोन एज स्पोर्स। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज स्पोरेंजियम एंड इनसाइड द स्पोरेंजियम tiny particle spores are present. Okay, so these are the hyphae of the fungi. ये fungi के hyphae हैं और these are the roots like rhizoids। ये नीचे आपको rhizoids दिखाई दे रहे हैं। तो spore formation में क्या होता है? sporangium जो present है, it contains tiny particles or tiny cells known as spores. Okay, so sporangium का function क्या है यहाँ पे? Sporangium protect the spores from unfavorable harsh condition. Sporangium spores को unfavorable और harsh condition से protect कर रही है। Okay, जैसे favorable condition आती है, sporangium wall breaks and spores are released outside. ये NCERT क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, what does organisms get advantage which reproduce through spore formation? spore formation से जो organism reproduce करते हैं उनके पास क्या advantage है? first advantage तो ये हो गई, sporangium spores को unfavorable condition से protect कर रहा है। second advantage क्या हो गई कि जैसे ही favorable condition आई, spores release हुए। now these spores are also protected by spore walls. इन स्पोर पे भी एक वॉल प्रेजेंट है जिसको हम स्पोर वॉल कहते हैं।
और ये स्पोर वॉल स्पोर्स को जब तक प्रोटेक्ट करेगी जब तक वो किसी मॉइस्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं आ जाते। सो राइजोपस इज योर ब्रेड मोल्ड, bread fungi, mucor, penicillium, all these are the fungi which reproduce through spores. Next is vegetative propagation. Vegetative propagation क्या होता है? प्लांट के किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो करना, चाहे वो स्टेम है, रूट है, लीफ है। ओके, सो रूट से डेलिया, स्वीट पोटैटो ग्रो किया जाता है, स्टेम से पोटैटो, जिंजर और लीफ से ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम वाला एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर लर्न करें, इट इज़ गिवन इन योर NCERT। एंड बेगोनिया इज ऑल्सो द प्लांट विच इज़ ग्रोन फ्रॉम द लीफ। तो प्लांट के किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो करना कौन सा मेथड है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स ऑफ द प्लांट। ओके, plants produced by vegetative propagation produce flowers and fruits earlier than those produced from seeds. अगर आप किसी प्लांट की स्टेम को कट करके लगा रहे हैं जिसके ऊपर बर्ड्स हैं तो वो जल्दी मैच्योर होगी, उस पर जल्दी फ्लावर्स आएंगे, जल्दी फ्रूट्स लगेंगे कंपेयर टू सीड जर्मिनेशन। अगर आपने सीड्स लगाए हैं तो प्लांट जर्मिनेट होगा, धीरे धीरे ग्रो होगा, फिर बर्ड्स आएंगे, फिर वो मैच्योर होगा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वो जल्दी मैच्योर होंगे, जल्दी फ्लावर्स और फ्रूट्स आएंगे। ओके, सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप का है बेटा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जब प्लांट नेचुरली ग्रो कर रहा है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जब हम उसे कट करके ग्रो कर रहे हैं उसके किसी भी पार्ट को, स्टेम, रूट, लीफ से जब हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। सो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में कटिंग आ गया, जिसमें आपका स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, रूट कटिंग आ गया, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो चलो देखते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कटिंग। तो देखिए ये प्लांट लगा हुआ है, इसकी आप स्टेम को कट करके लगाएंगे तो यहाँ पे देखो स्टेम कटिंग के थ्रू नया प्लांट ग्रो कर दिया है ना। और यहाँ पे देखो ये रूट्स हैं, इस रूट को कट करके जब आपने यहाँ पे लगाओगे तो इस रूट्स में से भी धीरे धीरे न्यू प्लांट है वो ग्रो हो जाएगा। तो ये स्टेम कटिंग हो गया और ये यहाँ पे रूट कटिंग हो गया। और लीफ कटिंग का एग्जांपल मैंने आपको ब्रायोफिलम बताया है। नाउ व्हाट इज लेयरिंग? लेयरिंग क्या होता है? प्लांट का ऐसी स्टेम, ऐसा पार्ट जो सॉइल के साथ कांटेक्ट में आ गया। जैसे मान लीजिए प्लांट की ये वाली स्टेम सॉइल को टच कर रही थी, तो धीरे धीरे इस स्टेम के ऊपर सॉइल कवर करेगी। इस तरीके से सम पार्ट ऑफ द स्टेम इज अबव द ग्राउंड, अबव द सॉइल, और सम पार्ट ऑफ द प्लांट इज बिलो द सॉइल। तो जो पार्ट सॉइल के नीचे है वहाँ पे रूट्स डेवलप होंगे, और जो पार्ट सॉइल से ऊपर है वहाँ पे न्यू लीव्स और बर्ड्स आ जाएंगे। ओके, सो लेयरिंग के दो टाइप्स हैं, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। तो अभी हम देखेंगे इसे। तो देखिए यहाँ माउंट लेयरिंग में क्या है, ये एक प्लांट था और ये इस प्लांट की स्टेम थी। तो ये स्टेम किसको टच कर रही है? सॉइल को। तो यहीं हमने क्या कर दिया, इसको सॉइल से और ज़्यादा कवर कर दिया, और यहाँ पे हमने वाटर अप्लाई कर दिया, इसको माउंट बना दिया सॉइल का इसके ऊपर। तो ये वाला पार्ट जो है वो सॉइल से ऊपर रहा और ये वाला पार्ट जो है वो सॉइल के नीचे आ गया। तो कौन से पार्ट में रूट्स डेवलप होंगी? द पार्ट बिलो द सॉइल। तो इस पार्ट में न्यू रूट्स डेवलप हो जाएंगे, फिर आप इसको यहाँ से कट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका माउंट लेयरिंग। नेक्स्ट है आपका एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या करते हैं, देखो जो स्टेम ऊपर की तरफ है, एयर ऊपर की तरफ है ना बेटा, तो ये जो स्टेम है जो यहाँ एयर सॉइल से ऊपर है ना, ग्राउंड को टच नहीं कर रही, ये सॉइल को टच नहीं कर रही, सॉइल से ऊपर है। तो आपने इसको पहले डिफोलिएट कर दिया, इसकी जो बार्क है नाइफ की हेल्प से उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, उसको रिमूव करने के बाद उसकी जो बार्क होगी, जो हार्ड कवरिंग होगी, उसको रिमूव कर दो तो अंदर से सॉफ्ट आ जाएगी, सॉफ्ट स्टेम आ जाएगी। उस सॉफ्ट स्टेम के ऊपर आपने मॉइस्ट सॉइल लगा दी, और मॉइस्ट सॉइल लगा के उसे पॉलीथीन से टाई कर दिया ताकि वहाँ मॉइस्चर बना रहे और माइक्रोबियल अटैक ना हो। तो धीरे धीरे क्या होंगे, यहाँ पे आपने जिस स्टेम को डिफोलिएट किया था, जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल लगाया था, पॉलीथीन से जिसे टाई किया था, उस पोर्शन में रूट्स डेवलप हो जाएंगी और ये स्टेम ग्रो हो रही है। फिर आप इसको यहाँ से कट करके सॉइल में कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप ध्यान देंगे माउंट लेयरिंग तो कहाँ पे हुआ था, उस स्टेम में जो ग्राउंड को, सॉइल को टच कर रही है, वहीं आपने उसे सॉइल से कवर कर दिया।
और एयर लेयरिंग आपने ऊपर की ब्रांचेस में किया, ऊपर की ब्रांचेस से पहले बार्क को रिमूव किया, फिर वहाँ पे मॉइस्ट सॉइल अप्लाई की, फिर पॉलीथीन से उसे टाई कर दिया टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंड माइक्रोबियल अटैक। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में देखो दो प्लांट्स को ज्वाइन किया जाता है, एक प्लांट से रूट का पार्ट लिया जाता है, दूसरे प्लांट से स्टेम का पार्ट लिया जाता है। तो जो रूट वाला पार्ट है उसको स्टॉक कहते हैं और स्टेम वाले पार्ट को शियोन कहते हैं। सो रूट वाला पार्ट ऐसा लेते हैं जो डिजीज रेसिस्टेंट हो, और स्टेम वाला पार्ट हम ऐसा लेते हैं जो हाई प्रोडक्शन देता हो, जिसकी अच्छी क्वालिटी हो, या आपके जो भी डिज़ायर्ड कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप दो प्लांट्स को कंबाइंड करते हैं और उन्हें एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो कर रहे हैं। तो ये जब प्लांट ग्रो होगा तो इसमें दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक होंगी। सो फ्रॉम वन प्लांट रूट इज टेकन एंड फ्रॉम अदर प्लांट स्टेम इज टेकन। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कट लगाया और स्टेम वाले पार्ट में भी बेटा देखो कट लगाया है, तो ये इसके अंदर जाके इस तरीके से फिट हो जाएगा, है ना। फिर इनको हम थ्रेड की हेल्प से इनको यहाँ पे टाई कर देंगे मॉइस्ट सॉइल वगैरह अप्लाई करके। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ्टिंग किस लिए किया जाता है, टू इंट्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो भी आपको चाहिए। सो ग्राफ्टिंग इज डन इन रोज, है ना। आपके गार्डन में अगर रेड रोज है और वाइट रोज है, दोनों को अगर आप ग्राफ्टिंग के थ्रू ग्रो करेंगे तो उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आएंगे। ओके, फ्रूट में भी किया जाता है, मैंगो प्लांट में, गुआवा में, पीचेस में। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या एडवांटेजेस हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, देयर ग्रोथ इज फास्टर कंपेयर टू सीड जर्मिनेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीड के थ्रू आप ग्रो करोगे तो उसे मैच्योर होने में, फ्लावर्स और फ्रूट्स आने में टाइम लगेंगे, लेकिन अगर वेजिटेटिव के थ्रू ग्रो कर रहे हो तो फास्ट ग्रो होंगे। अच्छा, सीड लेस प्लांट्स कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। आप बनाना खाते हैं, बनाना में सीड्स ही प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों नहीं है सीड्स बनाना में, क्योंकि हमने उनको वेजिटेटिवली ग्रो किया है, तो उसमें अब सीड्स का कोई रोल नहीं है, तो सीड्स आती ही नहीं है बनाना में, है ना। फ्रूट खाया होगा आपने बनाना, तो सीड लेस प्लांट्स को आप कैसे ग्रो करोगे, वहाँ पे एक ही मेथड बचता है आपके पास, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो प्लांट्स हैं वो फास्ट ग्रो होंगे, सीडलेस प्लांट्स को भी आप ऐसे ग्रो कर सकते हो। ओके, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में न्यू प्लांट्स आएंगे, दे आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम आएंगी। ओके, तो जो पेरेंट प्लांट की गुड कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने प्लांट में रखना चाहते हो वो सारी की सारी वेजिटेटिव प्लांट के थ्रू ग्रोन प्लांट्स में अपने आप आएंगी। तो यहाँ पे बनाना का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि बनाना में सीडलेस प्लांट सीड्स प्रोड्यूस नहीं होती, तो सीडलेस प्लांट्स को हम इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ओके, अच्छा, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। डिसएडवांटेजेस सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका जो प्लांट है, अगर उसमें कोई डिजीज़ है पेरेंट प्लांट में, तो वेजिटेटिवली अगर आप उसे ग्रो कर रहे हैं तो उसमें वो सेम वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, है ना। और जो वेजिटेटिवली आपने ग्रो किया है होमोजाइगस प्लांट को, सो वो पर्टिकुलर पेस्ट से अटैक हो सकते हैं, डिजीज़ से हो सकते हैं। वेजिटेटिवली ग्रोन प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है कंपेयर टू सेक्सुअली प्रोपगेटेड प्लांट, क्योंकि आपका वेजिटेटिवली किसका पार्ट हो गया, एसेक्सुअल का, उसमें वेरिएशंस कम आएंगी, वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन जो सेक्सुअली प्रोपगेटेड प्लांट है उनमें वेरिएशंस आएंगी और एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट ईजीली हो जाएगा। ओके, लास्ट है आपका टिश्यू कल्चर। व्हाट इज टिश्यू कल्चर। प्लांट के कुछ सेल्स को आइसोलेट करना और उन आइसोलेटेड सेल्स से लेबोरेटरी के अंदर प्लांटलेट्स को ग्रो करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। प्लांट की जो ग्रोइंग टिप है वहाँ से कुछ सेल्स को आइसोलेट किया जाता है और फिर आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम की हेल्प से, जैसे अगार अगार हो गया, और हॉर्मोन्स की हेल्प से, प्लांट हार्मोन की हेल्प से उनको लैब के अंदर ग्रो किया जाता है।
और जब स्टेम और रूट्स डेवलप हो जाती हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, तो इन प्लांट्स को नर्सरी में भेज दिया जाता है या सॉइल के अंदर प्लांट कर दिया जाता है। तो आपको पता है लेबोरेटरी की टेक्निक है, तो टिश्यू कल्चर के प्लांट्स कैसे होंगे, डिजीज़ फ्री होंगे। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। टिश्यू कल्चर में प्लांट को कैसे ग्रो किया था बेटा? by isolating some cells from the growing tip of the plant. ओके तो ग्रोइंग टिप से कुछ सेल्स को आइसोलेट किया जाता है लैब के अंदर, न्यूट्रिएंट मीडियम और हार्मोन्स की हेल्प से वो सेल डिवाइड करते हैं। सो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं कैलस। वो कैलस डिवाइड करता है और उसमें से रूट्स डेवलप होती हैं और फिर उसमें से स्टेम डेवलप होती है, और रूट्स और स्टेम डेवलप होने के बाद उन्हें नर्सरी में भेज दिया जाता है और सॉइल में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ओके सो टिश्यू कल्चर से प्लांट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो डिजीज़ फ्री होंगे, क्योंकि लेबोरेटरी की टेक्निक है ये। टिश्यू कल्चर में आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई देम। जेनेटिकली आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जीन्स को चेंज कर सकते हैं, है ना। आप डिजायर्ड कैरेक्टर का जो जीन है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके जो प्लांट्स ग्रो होंगे एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट प्लांट के, और जिस भी डिजायर्ड कैरेक्टर के लिए आपने कंसिडर किया है, गुड फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, तो जैसे पेरेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स विल अपीयर। ओके अब यहाँ पे देखिए आप, फ्रॉम फ्यू सेल्स यू कैन ग्रो मैनी सेल्स। आपने तो एक प्लांट के कुछ सेल्स को यूज़ किया था और उन कुछ सेल्स से आपने बहुत सारे प्लांटलेट्स ग्रो कर लिए। तो यहाँ पे आपने फ्रॉम अ फ्यू सेल्स यू हैव ग्रोन मैनी प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स जो स्टेराइल हो चुके हैं, विच हैव लॉस्ट देयर रीप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको मॉनसून सीजन में आपको डिपेंड रहना पड़ता है, बट टिश्यू कल्चर यू कैन डू इट थ्रू आउट द ईयर। आप पूरे साल कर सकते हैं। ओके आपको वेदर के ऊपर, मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके सो एडवांटेजेस फिर से देखेंगे यहाँ पे। लार्ज नंबर ऑफ क्लोन्स, लार्ज नंबर ऑफ क्लोन्स का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल एक्सप्लांट। एक्सप्लांट प्लांट का वो पार्ट था जहाँ से आपने सेल आइसोलेट किए थे। ओके डिजायर्ड कैरेक्टर्स आप ग्रो कर सकते हैं। ओके आपको यहाँ पे सीड प्रोडक्शन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ स्टेरिलाइज्ड प्लांट्स, स्टेरिलाइज्ड प्लांट्स हैं, डिजीज़ फ्री प्लांट्स होंगे और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। बाहर का जो प्लांट है वो मंगवा सकते हैं आप। नो सीजनल रेस्ट्रिक्शन ऑन प्लांट जर्मिनेशन, है ना, मॉनसून सीजन पे आपको डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा यहाँ पे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।